Hello students, I Ravindra Kumar Sharma. Today's class will be 12th of physical education. Now, today's our topic is the pitfalls of dieting. अल्पाहार के खतरे. Nowadays, everybody wants to remain slim and trim. The individuals who are overweight or obese also want to reduce or lose weight. They use various methods of weight loss. Most of them adapt to dieting to lose weight. In the beginning, dieting produces good result or successes, but after initial successes, it adds more weight later on. Even research studies indicate that 90% of the dieters gain all of their weight back and sometimes more than that. In fact, we are all aware that shedding or losing weight is not as simple as it sounds. Eat less and exercise more to burn calories. We know this scientific fact, but it is difficult to implement. In fact, there are some pitfalls of dieting that keep us away from losing or reducing weight. आजकल प्रत्येक व्यक्ति दुबला पतला रहना चाहता है. जो व्यक्ति अधिक भार अथवा मोटापे से ग्रस्त है वे अपना भार घटाना चाहते हैं. वे भार कम करने के विभिन्न तरीके अपनाते हैं. उनमें से अधिकतर लोग भार कम करने के लिए अल्पाहार को अपनाते हैं. प्रारंभ में अल्पाहार के बेहतरीन परिणाम सामने आते हैं, किंतु प्रारंभिक सफलता के बाद ये भार में और भी वृद्धि करता है. यहाँ तक कि शोधों से यह भी पता चलता है कि 90% अल्पाहार करने वाले व्यक्ति उनके द्वारा कम किए गए भार को वापस पा लेते हैं, जबकि कई मामलों में उससे कहीं अधिक भार दोबारा बढ़ जाता है. वास्तव में हम जानते हैं कि भार को कम करना इतना आसान नहीं है जितना कि यह प्रतीत होता है. कम खाओ तथा व्यायाम अधिक करो, इस तथ्य को हम जानते हैं, किंतु इसका अनुपालन करना बहुत कठिन है. इसकी कुछ हानियां हैं जो हमें भार कम करने से दूर रखते हैं. Now, so students, I explain the major pitfalls of dieting one by one. The first major pitfalls of dieting is extreme reduction of calories. For dieting, intake of calories are reduced extremely. Research studies indicate that 1800 calories a day cannot meet all the nutritional requirement of an individual. If our reduce more intake of calories, it will be produce a huge weight loss. It can be dangerous for our. It will definitely lower your metabolism, and as a result of it, our body weight will not be reduced properly. अल्पाहार के चलते शरीर में जाने वाली कैलोरियों में अत्यधिक कमी आ जाती है. रिसर्च बताते हैं कि 1800 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से किसी व्यक्ति की दैनिक पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती. यदि हम कैलोरी इससे भी कम कर देते हैं तो इससे हमारा भार अत्यधिक कम हो जाएगा. ऐसा करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है. ये अवश्य ही हमारे मेटाबॉलिज्म को कम कर देगा, परंतु हमारे शरीर का भार पूर्ण रूप से कम नहीं होगा. सेकेंड, restriction on some nutrients. Generally, some nutrients like carbohydrates and fats are restricted in dieting. In reality, our body needs all type of nutrients. If we don't take all the nutrients in required amount, our proper functioning will be impaired. Generally, carbohydrate तथा फैट्स इत्यादि पोषक तत्व अल्पाहार में प्रतिबंधित होते हैं. हमारे शरीर के लिए सभी पोषक तत्व अनिवार्य हैं. यदि हम सभी पोषक तत्वों की निर्धारित मात्रा ग्रहण नहीं करते तो हमारी समुचित कार्यशीलता क्षीण हो जाएगी. थर्ड, स्किपिंग मील्स. इट इज़ अ फैक्ट दैट इट आवर गुड मेटाबॉलिक रेट वी कैन मेंटेन और लूज वेट. If it is low, we gain weight very easily. So if we skip meals, it will lower our metabolism to conserve energy. So skipping meals works against our weight loss plans. Research studies also show
if we skip one meal, we take more calories at the next meal. यदि हमारी मेटाबॉलिक रेट अच्छी है तो हम भार बनाए रख सकते हैं अथवा इसे कम भी कर सकते हैं। यदि ये काफ़ी कम है तो हमारा भार आसानी से बढ़ जाएगा। अतः यदि हम किसी समय पर भोजन नहीं खाते तो ये ऊर्जा के संरक्षण हेतु हमारे मेटाबॉलिज्म को कम कर देगा। इसलिए किसी समय पर भोजन को छोड़ देना हमारे भार कम करने की योजना के विरुद्ध कार्य करेगा। शोध अध्ययन भी बताते हैं कि यदि हम एक वक्त का भोजन नहीं करते हैं अर्थात छोड़ देते हैं तो हम दूसरे वक्त अपेक्षाकृत अधिक कैलोरी ग्रहण करते हैं। फोर्थ, intake of calories through drinking. If we want to lose our weight, most probably we lay stress on not to eat more and not on what you drink. In fact, beverages, coffee with cream and sugar, sweetened juices and sodas really contribute to weight gain. यदि हम अपना भार कम करना चाहते हैं तो संभवतः हम इस बात पर अधिक ध्यान देते हैं कि हम अधिक ना खाएं, ना कि इस बात पर हम क्या पी रहे हैं। वस्तुतः पेय पदार्थ, क्रीम वाली मीठी कॉफ़ी, मीठे जूस तथा सोडा वास्तव में भार बढ़ाने में योगदान देते हैं। फिफ्थ, अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरीज. इट इज़ अ फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द पर्सन्स who go on dieting usually underestimate the number of calories they consume. So, it is essential to be more aware about the number of calories we take in our diet. वास्तव में जो भी व्यक्ति अल्पोहार का सहारा लेते हैं वे प्राय उनके द्वारा ली जाने वाली कैलोरियों का कम आंकलन करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें अपने द्वारा खाए या लिए जा रहे आहार की कैलोरियों की मात्रा का ध्यान रखना है। Now, last point, not performing exercise. If we go on dieting and do not perform exercise, it will not work properly. Instead of losing weight, we are likely to gain weight. Exercise has a positive effect on metabolism and also help to burn some extra calories. Exercise increases metabolic rate, which ultimately reduces body weight. So dieting is beneficial if we perform exercise along with it. यदि हम अल्पोहार पर जाते हैं और व्यायाम नहीं करते तो यह समुचित रूप से कार्य नहीं करेगा। भार कम करने की अपेक्षा हमारा भार बढ़ने की आशंकाएं अधिक हो जाती हैं। व्यायाम से हमारे मेटाबॉलिज्म पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा यह हमारी अतिरिक्त कैलोरियों को जलाने में भी सहायता करता है। व्यायाम मेटाबॉलिक रेट में भी वृद्धि करता है जो हमारे शरीर के भार को कम करता है। इसलिए अल्पोहार तथा समुचित रूप से कार्य करेगा जब हम इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज ओवर. नेक्स्ट टॉपिक विल बी इन फर्दर वीडियोस. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ.